السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں کونڈا دیوی گلیشیئر کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، جس کے بعد برف کے تودے گرنے لگے اور الاکنندا ندی اور دوسری دریاؤں میں سیلاب آ گیا، جس کے نتیجے میں ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشنز بہہ گئے اور کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 125 لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈھولی گنج میں رشی گنگا اور الکنندا ندیوں میں اچانک سیلاب کی وجہ سے گنگا کی تمام معاون ندیوں کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی اور بلندی پر واقع ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی گئی۔ رات دیر گئے اتراکھنڈ پولیس نے بتایا کہ پانی کی سطح دوبارہ بلند ہو رہی ہے۔ چمولی میں ندی کے کنارے رہنے والے افراد کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ اور فوج کو بھی چمولی علاقے میں امدادی سرگرمیوں میں طلب کر لیا گیا ہے۔ فوج نے تقریباً 400 سپاہیوں اور 2 میڈیکل ٹیموں کو متاثرہ علاقوں میں روانہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال میں کئی مرکزی اسکیموں پر عمل نہ کرنے کے لیے ممتا بنرجی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ عوام کو توقع تھی کہ وہ ممتا کا مظاہرہ کریں گے، لیکن انہوں نے نرمتا دکھائی۔ مغربی بنگال میں جہاں انتخابات ہونے والے ہیں، اپنی پہلی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے ترنمول کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اس پر کرپشن اور غلط حکمرانی کا الزام لگایا اور کہا کہ حکمران جماعت نے گزشتہ 10 سالوں میں کئی غلطیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے عوام نے اسے اقتدار سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مودی نے کہا کہ ترنمول کانگریس حکومت ریاست میں بائیں بازو حکومت کی غلط حکمرانی کا دوسرا جنم ہے۔ بھارت ماتا کی جے کے نعروں پر برہمی کے لیے چیف منسٹر ممتا بنرجی کا مذاق اڑاتے ہوئے مودی نے سوال کیا کہ جب ملک کو بدنام کرنے کی سازشیں کی گئی تو وہ خاموش کیوں تھی؟ مادر وطن کی تعریف میں نعرے سن کر وہ برہم ہو جاتی ہے، جب آپ اپنا حق مانگتے ہیں تو غصہ میں آ جاتی ہے، لیکن جب ملک کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جاتی ہے تو وہ خاموش رہتی ہے۔ کسانوں کے احتجاج سے متعلق ٹویٹر پر امریکی گلوکارہ رابن ریحانہ کے خلاف ہو رہے تنقیدوں کے بارے میں اداکارہ سورا بھاسکر نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں داخلی معاملے پر مداخلت کرنا غیر منصفانہ ہے، تو ہمیں بھی ہمارے ملکوں کی سرحدوں کے اندر ہونے والے واقعات پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب سیاہ فام زندگی کا معاملہ سامنے آتا ہے تو ہماری سیلیبریٹیز نے اس پر ٹویٹ کیوں کیا؟ فیض آباد کے کچھ مسلمانوں نے فیض آباد کے رام بھون میں رام مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز جمع کرائے ہیں۔ فنڈز جمع کروانے والے مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا تعلق کسی دوسرے مذہب سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم دوسرے ملک ترکی سے نہیں آئے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کا تعلق اس سرزمین سے ہے اور ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں اور ان کے مندر کی تعمیر کے لیے بھی ہم اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں۔ متھرا کی عدالت نے شاہی عیدگاہ مسجد انتظامیہ کمیٹی اور دیگر کو نوٹسیں جاری کی اور ایک تازہ درخواست پر ان کا موقف جاننا چاہا، جس میں 17ویں صدی کی مسجد کو کٹرا کیشو دیو مندر کمپلیکس متھرا میں کرشن بھگوان کی جنم بھومی کے قریب سے ہٹا دینے کی گزارش کی گئی ہے۔ ایڈیشنل ضلع و سیشن جج دیوکانت شکلا نے درخواست سماعت کے لیے قبول کرتے ہوئے صدر سنی وقف بورڈ لکھنؤ اور مینیجنگ ٹرسٹیز شری کرشن جنم بھومی ٹرسٹ کٹر کیشو دیو مندر اور شری کرشنا سیوا سنستھان کٹر کیشو دیو مندر کو نوٹسیں جاری کی۔ عدالت نے کہا کہ اس دیوانی مقدمے کی تفصیلی سماعت ہو سکتی ہے۔ دہلی پولیس نے 26 جنوری کو لال قلعے پر تشدد کے ایک ملزم سکھدیو سنگھ کو چندی گڑھ سے گرفتار کیا ہے۔ دہلی پولیس نے قبل ازیں دیپ سدھو، جگرات سنگھ، جروت سنگھ اور گرجن سنگھ کی گرفتاری میں معاون اطلاع دینے پر فی کس 1 لاکھ روپے رقمی انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تازہ گرفتاری کے ساتھ یوم جمہوریہ تشدد کے سلسلے میں گرفتار افراد کی تعداد اب 127 ہو گئی ہے۔ ہنر ہاٹ کا 29 لاکھ سے زائد افراد نے مشاہدہ کیا ہے، جس کا اہتمام لکھنؤ میں اودھ شلپارم میں کیا گیا۔ یہ بات مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہنر ہاٹ کا 22 جنوری سے آغاز ہوا، جو کہ 7 فروری تک جاری رہا۔ اس موقع پر کروڑوں روپے کی دستی اشیاء کی خریداری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے فنکاروں کی جانب سے تیار کردہ پروڈکٹس کی خریداری میں عوام نے جوش و خروش کا اظہار کیا ہے۔ ہنر ہاٹ کے اختتامی دن میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ ہنر ہاٹ کے موقع پر ملک کے مختلف حصوں کے فنکاروں اور صنعتوں سے وابستہ افراد نے اپنے پروڈکٹس پیش کیے تھے۔ اس طرح ایک مقام پر ملک کے مختلف حصوں کے افراد کو اپنی اشیاء فروخت کرنے کا موقع ملا۔ یہاں آنے والے افراد نے ملک کے مختلف حصوں میں تیار کی جانے والی اشیاء کی خریداری کی اور مشاہدہ کیا۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ 31 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنی تیار کردہ اشیاء پیش کی، جس کا اہتمام لکھنؤ میں کیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے گجرات کے سیاسی منظر میں پہلی مرتبہ قدم رکھتے ہوئے قبائلیوں، مسلمانوں اور دلتوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور یہ تاثر پیش کیا کہ ان کی پارٹی بی جے پی اور کانگریس کا واحد متبادل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے گجرات میں مجوزہ مقامی انتخابات سے قبل یہ بات کہی۔ اسد الدین اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین ایک قبائلی جماعت بھارتیہ ٹرائبل پارٹی کے
साथ इत्तेहाद करते हुए अहमदाबाद और भरूच में पहली मरतबा इंतखाबी मैदान में हैं। अहमदाबाद और भरूच में मुहिम चलाते हुए असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत कबाइलियों और मुसलमानों और दीगर पसमानदा तबक़ात के ताल्लुक से दोहरे मियारात इख्तियार कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इनकी पार्टी मजलिस और भारतीय ट्रिबल पार्टी राजस्थान में भी इत्तेहाद करेगी। अबूधाबी हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद हिफाजती तदाबीर मजीद सख्त करने का फैसला किया है। इमारती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कोरोना के इंसदाद के लिए कायम कमेटी ने कहा है कि तमाम तिजारती मराकिज़ में गुंजाइश के हिसाब से सिर्फ 40% लोगों को जाने की इजाज़त होगी। वर्जिश मराकिज़, स्विमिंग पूल्स और निजी साहली इलाकों में गुंजाइश के हिसाब से सिर्फ 50% लोगों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्कों और पब्लिक मुकामात में गुंजाइश के हिसाब से सिर्फ 60% लोगों को जाने की इजाज़त होगी। कमेटी ने कहा कि तमाम सिनेमा घर बंद होंगे, हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी और इज्तिमात मना होंगे। शादी ब्याह की तकरीबात में 10 से ज़्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को शादी पर बुलाकर गले लगाया और कश्मीरियों से बगावत और गद्दारी का इर्तिकाब किया। नवाज शरीफ की बेटी किस मुंह से कश्मीर का जिक्र करती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अबूधाबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब इमारात की अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर आज़म हाउस से जारी इलामिया में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और यूएई के माबिन मौजूदा करीबी बरादराना ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से मुतालिक क़यास आरायों का खात्मा करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वादे कर दिया कि वो आइंदा 10 सालों तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के बारे में बयानबाजी बंद कर दें। केसीआर आज तेलंगाना भवन में पार्टी की रियासती आमिला के इजलास से खिताब कर रहे थे। 2 घंटों से ज़ायद तक इजलास जारी रहा, जिसमें पार्टी के तंजीमी इस्तेहकाम, मजालिस मुकामी ग्रेजुएट ज़ुमरे की MLC नशिस्तों और नागार्जुना सागर ज़मनी इंतखाबात जैसे उमूर पर गौर किया गया। हालिया अरसे में KTR को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने से मुतालिक क़यास आराइयों पर नाराज़गी का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो असेंबली में पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 10 सालों तक अवाम की खिदमत के लिए ओहदे पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से फ़राइज़ की अंजामदही में कोई रुकावट नहीं है। KCR ने कहा कि मैंने जद्दोजहद के ज़रिए अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल की है और मेरे लिए ओहदा कोई अहमियत नहीं रखता। मैंने अलहदा तेलंगाना के लिए कई ओहदों को छोड़ दिया है। मैं आइंदा 10 सालों तक चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रहूँगा, इसका साबिक़ में असेंबली में ऐलान कर चुका हूँ। बावजूद इसके नए चीफ मिनिस्टर के बारे में बयानबाजी मेरी समझ से बाहर है। तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने ग्लैड एग्रो कंपनी की अराजी के करीब धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान एहतजाजी कारकुनों ने कंपनी के शेड को तोड़ डाला, जिस पर पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। इत्तला के मुताबिक बीजेपी के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज किया। इस वाक़े में कोडाडी SP रघु, हुजूर नगर सर्कल इंस्पेक्टर रघु राव और 2 सब इंस्पेक्टर्स के सर पर जख्म आए और कई पुलिस जवान जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, अरकान असेंबली रघुनंदन राव और राजा सिंह और विजय शांति भी वहां पहुंच गए। काफ़ी देर तक इलाके में कशीदगी देखी गई। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर T. सौंदरराजन ने कहा कि हिंदुस्तान में इस कदर सलाहियत मौजूद है कि वो आलमी सतह पर खलाई तहकीकात का मरकज़ बन सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साइंसदानों में काबिलियत और जहानत की कोई कमी नहीं है और सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम रखता है। गवर्नर ने कहा कि खलाई तहकीक के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 6 ममालिक में शामिल है और हुकूमत के ताउन से खलाई तहकीक में मजीद पेशरफ्त होगी। गवर्नर ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च क्यूबिक्स चैलेंज 2021 का ऑनलाइन इफ्तिताह अंजाम दिया। ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलविस चीन की वेबसाइट्स के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और हैदराबाद पुलिस ने अपनी तहकीकात में शिद्दत पैदा कर दी है। एक अंदाजे के मुताबिक ऑनलाइन धोखाधड़ी के रैकेट में अभी तक 104 करोड़ रुपए की बैरूनी कंपनियों को मुंतकली का पता चलाया गया है। तहकीकाती अहदेदारों को गुज़िश्ता साल अगस्त में गिरफ्तार किए गए चीन के शहरी से की गई तफ्तीश के दौरान कई हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं। बताया जाता है कि अभी तक 1100 करोड़ रुपए गेमर्स से हासिल किए गए और 104 करोड़ बैरूनी कंपनियों को मुंतकिल किए जा चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर यह रकम मुंतकिल की गई। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने पुलिस के ताउन से रकूमात की मुंतकली का पता चलाने की कोशिश की है। बताया जाता है कि मुलजिमीन अवाम को ऑनलाइन गेम्स का पेशकश करते हैं, जिसके जरिए इन्हें बआसानी धोखा दिया जा सकता है। शहर हैदराबाद में गैर मिजाज वाटर कनेक्शन के खिलाफ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में महकमा आबरसानी की जानिब से शहर के तमाम मकानात का घर घर सर्वे और आबी कनेक्शन के मुतालिक मालूमात के हुसूल का फैसला किया गया है। रियासती हुकूमत ने मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हदूद में 20,000 लीटर मुफ्त पानी की स्कीम का ऐलान किया था और इंतखाबात के बाद मुफ्त पानी की स्कीम के हुसूल के लिए आधार कार्ड और
नल के मीटर के लुज़ूम का फैसला किया गया और कहा गया कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड और नल का मीटर मौजूद है इन्हें इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने का मौका दिया जाएगा और शहर हैदराबाद में गैर मिजाज कनेक्शंस है इन्हें बर्खास्त करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। शहर हैदराबाद में कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं और ये स्ट्रक्चर्स रियासत में सयाहत के फ़रोग़ और इसमें इजाफे के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए 60 करोड़ रुपये मसारिफ के साथ तारीख़ी शहर हैदराबाद में हेरिटेज इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस शहर में जहाँ कहीं हेरिटेज स्ट्रक्चर्स और तारीख़ी मुक़ामात हैं, सयाहों की आमद में इजाफा हो रहा है। चुनांचे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सयाहत के लिए पुरकशिश मुक़ामात पर सेहत व सफाई की बरकरारी की मुहिम चलाई है ताकि शहर को साफ़ सुथरा रखा जाए। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत GHMC ने 12 मुक़ामात की निशानदही की और इन मुक़ामात पर सेहत व सफाई और ग्रीनरी को यकीनी बनाने के लिए 2 खानगी एजेंसियों की खिदमात हासिल किए हैं। इन एजेंसियों को इन मुक़ामात पर 24 घंटे साफ़ सफाई को बरकरार रखने का काम तफवीज़ किया गया है। उन्होंने वर्कर्स को काम पर लगाते हुए 3 शिफ्टों में सेहत व सफाई के काम शुरू किए हैं। सयाहत के लिए अहम मुक़ामात के अलावा GHMC ने चार मीनार, सालार जंग म्यूजियम, मक्का मस्जिद, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और दीगर चंद मुक़ामात की निशानदही की है जहाँ सयाहों की बड़ी तादाद की आमद होती है। अभी फरवरी का महीना ही है लेकिन दिन के वक्त में लोग गर्मी की शिद्दत महसूस करने लगे हैं। दर्जे हरारत में महकूमा मौसमियात के बमुजीब इजाफा हो रहा है। फिलवक्त मौसम की जो हालत है वो एक ट्रेलर हो सकती है और इससे अंदाज़ा होता है कि आइंदा महीनों में गर्मी का मौसम सख्त होगा। तेलंगाना में कई मुकामात पर दिन का दर्जे हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम रियासत में रात का दर्जे हरारत कम बरकरार है। गुज़िश्ता साल ज़्यादातर मौक़ों पर दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। ताहम इस साल गर्मा के जल्द शुरू होने से दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफे के इम्कानात है और ये रियासत के बाद हिस्सों में 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।